Okay, now we are starting with your next chapter, that is directing. Page number 106, management class, foundation starts by that. What is direction? Concept of direction, and it is one of the most important function of the management. So most of the functions of management are important only. So it is one of the important function of management. What do you mean by direction? Firstly, we have to start from planning. Decide your goal and plan. After the planning, the next step is organizing. That is organizing means grouping the activities, right person, etc. After that, you have to do the staffing, and in your course, that's called as human resource management (HR). Human resource management मतलब लोगों को किसको किस काम पे motivation, training, etc. After all these things is direction. Directing मतलब whatever you have decided, plans decided, and activities are grouped, people are trained. Now your work is to give them a direction as per your best supervision, and after giving the direction, get the things done from them. उनसे आपको अपना काम करना है, वो तो direction, ठीक है? So concept of directing क्या कहता है? Directing is part of managerial function which actuate the organization method to work efficiently for achievement of organization goals or purpose. And it is basically one of the important functions that's considered as a life spark of the enterprise, which sets in its motion the action of people because of planning. तो होता क्या है? Basically action. Directing is more of action oriented. लिख सकते हो इसको as a question. Directing is more of action oriented. ठीक है? Henry Fowler's work from the directing part. तो वो डायरेक्टिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्टिंग के अगर आपको ऑथर का पूछा जाए तो हेनरी फ्योलर डायरेक्टिंग क्या, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, बट हाँ कुछ भी नहीं आता तो हेनरी फ्योलर इज वन ऑफ देम, उसने मेजरली डायरेक्टिंग पे फोकस किया. So Henry Fowler emphasized certain other concept to facilitate direction. कुछ और भी उसने facilitate करने के लिए बताया. पहला, to have through the knowledge of personnel. Directing क्यों होता है? To have through the knowledge of staff. To eliminate the incompetent, मतलब those who are not working, उनको अपने हटा देना. To be well versed in the agreement binding the business and its employees. To set a good एग्जाम्पल. ऑफ कोर्स गुड एग्जाम्पल होगा अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो भी, अगर काम नहीं कर रहा उसको निकालोगे तब भी गुड एग्जाम्पल. टू कंडक्ट अ पीरियोडिक ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिट का मतलब है चेक करना. टू कंडक्ट अ पीरियोडिकल ऑडिट मतलब चेक करना समय समय पर इस चीज को. टू ब्रिंग टुगेदर द चीफ असिस्टेंट्स बाय मींस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस at which unity and direction of the focusing and efforts are provided. So basically ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वो सबसे मिलता है, ठीक है, और मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देते हैं कि समय समय पर आपको क्या करना चाहिए, जोश भरता है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. टू एम एट इन्फ्यूजिंग यूनिटी, एनर्जी, इनिशिएटिव एंड लॉयल्टी अमंग द पर्सनल. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं? Directing is important managerial function. Okay, directing function is a performance at a very at every level. सबका है, मतलब ये कुछ ऐसे functions हैं जो मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट के फीचर है कि इम्पोर्टेंट है. दूसरा, एट एवरी लेवल. अब चाहे आप प्लानिंग बोलो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग बोलो, चाहे आप HRM बोलो, हर लेवल पे चाहिए होता है. हाँ, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो सर मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े सबको क्या है? कंटिन्यूस है ना. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वन टाइम में नहीं हो सकता, कंटिन्यू रहता है. देन डायरेक्शन इनिशिएट एट द टॉप लेवल. ऑफ कोर्स सारे यही है. मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है कहाँ से इनिशिएट होते हैं, तो एंड गोज अप टू लास्ट और द लोअर लेवल. ये भी सब में आएगा, है ना. ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शन एज अ ड्यूल ऑब्जेक्टिव. हाँ, ये अलग है.
On the one hand, it aims at getting things done by the subordinates, and on the other, it aims at providing the superiors opportunity for some important work which the subordinates can't do. समझ आया इसका मतलब कि डायरेक्शन से एक फायदा होता है कि जो सुपीरियर है, तो सुपीरियर को फायदा क्या होता है? दो काम। पहला तो वो दूसरों से काम करवा सकता है, और दूसरा जो काम सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो खाली हो गए उनको डायरेक्शन देके, तो क्यों ना आप जो छोटा काम था वो तो आपने उससे करवा लिया, तो थोड़ा सा उसमें टेक्निकली टफ काम है वो खुद करवा, मैनेजर करेगा। तो ऐसे ही तो होता है कंपनीज में, जो फील्ड में घूमने वाले काम होते हैं वो तो आप हायर कर लेते हो थोड़ा क्लरिकल लेवल के लोगों को, और उनको बोलते हो कि तुम ये काम करके आओ। और थोड़ा बेटर वर्क है, टेक्निकल है, जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, वो किसको मिलता है? मैनेजर को, उसको करना पड़ता है। तो क्या ये पार्ट है डायरेक्शन का? हाँ, वो डायरेक्शन देके छोटों से काम करवा लेता है थोड़ा सा, जो लोअर लेवल तो जूनियर स्टाफ से, और सीनियर स्टाफ खुद टेक्निकल या इंपॉर्टेंट काम करता है। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? किसी को प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पता है? तो एक दो पॉइंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। कंटिन्यूस प्रोसेस इंपॉर्टेंस, और फीचर में क्या है? दोनों को मिक्स नहीं करते। गोल ओरिएंटेड का किसी ने somebody said goal oriented, और कुछ? हाँ, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। एनीथिंग एल्स? help to achieving goals. हाँ, Helps to achieve goals. हाँ, गोल ओरिएंटेड या helps to achieve गोल हो गया। Provides direction in which direction we have to go. Put it in every level. But for direction, something like that. They don't provide direction, but basically again they set your goal, or in advance you decide where you have to reach. Which is that, or कुछ? Reduce cost. Planning, reduce cost. Resources come checkpoint for control. It could be a checkpoint for controlling one of the important and creative ideas. Reduce wastage. It could help you to utilize your resources efficiently. Could ऐसा बोलो। और एक गोल ओरिएंटेड हो गया, जो मैं बता दूं जो सही वाला है, बाकी सब तो बाकी है। गोल ओरिएंटेड एंड रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और कोई? थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आज बैठेंगे फिर सब ज़्यादा देर मैं आपको क्लास से बाहर निकालूँ और आज की भी क्लास वेस्ट करेगा, इससे बेटर है मैं फिर बिठाऊँगा आपको, फिर पढ़ाऊँगा। अगर किसी को आता है तो मुझे बताओ, बीच बीच में आपसे सवाल पूछता जाऊँगा। आज हम सबको बिठाएंगे, सबको पढ़ना पड़ेगा। एनी अदर, एनीवन एल्स? प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या? प्लानिंग नहीं होता, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस कब पता चलती है? जब वो चीज़ ना हो। तो अब ऐसा सोच के देखो कि प्लानिंग के बिना काम किया जाए तो क्या हो सकता है? ऐसा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, आंसर फिर आएगा। Provide maximum efficiency ऑफ रिसोर्सेज, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। डिटेक्ट करता है जो फ्यूचर में चेंजेस आते हैं उसको फ्यूचर डिसीजन helps you to take better decision, nobody limitation means helps you to take better decision, नहीं फ्यूचर वाली बात की हमने अपने प्लान बना लिया तो फ्यूचर में कोई चेंज करना तो प्लान को helps you to take better decision, ऐसा बोलेंगे। वो अगर आप बोलोगे तो हो सकता है, बट अगर हम ऐसा बोले कि प्लानिंग हेल्प्स यू टू टेक बेटर डिसीजन, तो वो एक हमारे लिए मतलब एक क्लोजेस्ट टू, एक्चुअल तो नहीं ले सकता ना, बट क्लोजेस्ट ले सकता, नियर टू
एक्चुअल ले सकता है, प्लानिंग की हेल्प हो सकती है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डिसाइड योर वर्किंग कैपिटल इन एडवांस इन केस इफ यू नीड, क्या ये भी हो सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डिसाइड योर रिसोर्सेज, हाउ मच यू विल बी नीडिंग। तो इससे हमारे आइडल रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो जाएगी। आइडल रिसोर्सेज और वेस्ट वो हमारे खत्म हो जाता है। तो एक ये भी बोल सकते हैं, इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आइडल रिसोर्सेज, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे सही आएगा। मैंने बता दिया कि कोई चीज़ नहीं है तो सोचो कि वो चीज़ प्लान किए बिना अगर मैं कोई काम करूँ तो मेरे क्या क्या घाटे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कोई बता सकता है? ऊपर देखते हैं, बिना देखे अगर कोई बता सकता है, एनीवन हु कैन रेज द हैंड। कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रोसेसिव फंक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रोसेसिव मतलब हर लेवल चाहिए होता है, एवरी लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स, परवेसिव, एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन, लास्ट जो मैंने समझाया था कि अलग ड्यूल ऑब्जेक्टिव, दैट इज टेक्निकल चीज मैनेजर से करवा सकते हो और नॉर्मल क्लरिकल स्टाफ से कर सकते हो। ठीक है, तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, चीज़ों को समझना आसान है। दैट्स योर पार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग के क्या क्या फायदे हैं कि अगर डायरेक्टिंग ना होती तो क्या होता? सर कोई भी कुछ भी कर रहा होता, कोई भी कुछ भी कर रहा होता फिर तो डायरेक्टिंग होती ना तो क्या क्या फायदा? सबसे पहला, इनिशिएट द एक्शन। सर किसी को भी अगर आपको एक्शन, इनिशिएट द एक्शन मतलब किसी को भी अगर कोई काम करवाना तो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। तो इनिशिएट कहाँ से होगा? डायरेक्टिंग से इनिशिएट होता है। आगे दूसरा, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। हाउ इज इट पॉसिबल? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट द एफर्ट्स, व्हाट्स पॉसिबल? क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट समझते हो? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स, कोई बता सकता है कैसे? इकट्ठा करता है। क्या डायरेक्टिंग करने पर एक लीडर के अंडर काम कर रहे हो आप सारे? वंस यू आर अंडर वन लीडर तो रिपीटेशन ऑफ वर्क कम हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक आदमी ने काम कर लिया तो दूसरे आदमी से वो काम नहीं कर पा रहा। प्लस क्या हम ग्रुप से और चेन फैसिलिटी से काम कर सकते हैं उससे? मतलब मुझे पता है कि पहला काम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या इंटीग्रेट हो रहा है, सारा काम हमारा इकट्ठा हो रहा है? क्या इससे फास्ट होगा हमारा प्रोसेस? क्योंकि मैनेज होकर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, रिपीटेशन ऑफ वर्क तो खत्म हो ही गया ना आपका, तो फास्ट तो वैसे ही हो जाओगे आप। ठीक है, हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम बच जाएगा, लेबर आवर्स बचेंगे आप। ठीक है, सो for achieving organization objective, individual need not to be efficient but effective also. Their actions are interrelated in such a way that each individual performance affects the performance of other person. Thus, individual efforts need to be integrated so that the organization achieves the objective in the most efficient manner, and it is possible through the direction only. Third, direction attempts to get maximum out of individuals. How it's possible? Maximum out of individuals का मतलब क्या होगा? What do you mean by maximum out of individuals? तो क्योंकि आप डायरेक्शन से काम कर रहे हो, डायरेक्शन से काम करने का मतलब है देयर इज ऑलवेज सम बेटर सुपरविजन ऑन यू। और अगर एक आदमी आपका बेटर सुपरविजन कर रहा है तो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अचीव्ड। आपका जो रिसोर्स, जैसे आपने बताया कि लेबर आवर्स की वेस्टेज कम हो जाएगी सर, ऑटोमेटिकली लेबर आवर्स की वेस्टेज तो खत्म हो ही जाएगी। नेक्स्ट, direction attempts to get maximum out of individual. Then direction facilitates changes in the organization. Directing facilitates changes in the organization. कैसे? डायरेक्शन से बदलाव कैसे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सही को रखो, गलत को हटाओ, पढ़ा ना अपनी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एग्जिस्ट ओनली सोसाइटी एनी चेंजेस इन द सोसाइटी चेंजेस organization process to keep organization ready to face environmental changes. Moreover, their changes occurs in the organization structure and in individual level as well. To incorporate and implement these changes, management should motivate individual affected by them, which is the essential function of direction. Last is direction provides stability and balance in the organization. ठीक है, डायरेक्शन अगर है तो आपको स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
इफेक्टिव लीडरशिप है, कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ रहता है, तो उससे होता है क्या फायदा आपका? स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती है, किस चीजों का मिक्सचर बन के, एलिमेंट का मतलब होता है किन किन चीजों को मिला के डायरेक्शन दे सकते हो आप। सर एक आदमी जिसको खुद को नहीं आता, क्या वो डायरेक्शन दे सकता है? तो सबसे पहले तो डायरेक्शन किससे बनती है? नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए एक नॉलेज होनी जरूरी है। किस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्टिंग के अंदर? What type of knowledge you should have to give the direction? मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड लीडर बोले, लीडरशिप की क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट हो गया लीडरशिप। बट खाली लीडर ही डायरेक्शन नहीं दे सकता, मतलब लीडर तो कोई भी बन सकता है। लीडर तो आप एक जो बेसिकली अपनी विरासत में भी लीडर बन सकते हो, बहुत सारे देखे आपने, बट दे आर नॉट गुड। लीडर बनना एक बहुत बड़ी बात नहीं। लीडर तो आप लीगेसी में भी बन सकते हो कि फादर लीडर थे तो बेटे को भी लीडरशिप मिल गई। बट लीडर इज नॉट जस्ट जिसकी सुनी जाए। आपके सामने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जिनको लीडर तो है बट उनकी खुद की पार्टी उनकी सुनती नहीं है, उनको नेता मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ही डजंट हैव दैट मच कैलिबर कि हम इनकी माने, उसके अंदर वो दिमाग नहीं है। तो लीडरशिप इज वन ऑफ द एलिमेंट टू गिव डायरेक्शन। और क्या अच्छा, आप अपने ऊपर लेके देखो कि मैं अपने दोस्तों में, ग्रुप में, सर्कल में, ऑफिस में, हर चीज में बेस्ट आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब मेरी सुने, तो सब आपकी सुनेंगे? चिल्लाने से सुनते हैं सब आपकी? या पहला पॉइंट लीडरशिप क्वालिटीज। एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको बोलेंगे इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। लीडरशिप और मोटिवेट करना दूसरों को। भाई काम तो करवाना है, बट सामने वाले को भी तो मोटिवेट सको। तो डायरेक्टर के लिए पहली क्वालिटी लीडरशिप, दूसरी कम्युनिकेशन, एंड देन एक और होनी चाहिए आपके अंदर, वो थी सुपरविजन की। मतलब सब चीजों का ध्यान रखना, गड़बड़ जहां गलत लगे हटा, इनकम्पिटेंट को हटाते हैं। डायरेक्टर की और भी क्वालिटीज हो सकती है, और भी इससे ज्यादा भी क्वालिटी डायरेक्टिंग की हो सकती है। जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स भी होनी चाहिए आपके अंदर। तो डायरेक्टर तो डायरेक्शन तो वही दे सकता है ना जो काम करवा सके, और काम तब करवा सकते हो जब आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि यू शुड डू इट। ठीक है, लीडर्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमारे जो टेररिस्ट होते हैं ये लोग, और हमारे जो टेररिस्ट है ये भी तो लीडर है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है ये लोग। ठीक है, और ये इतने इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स होती है इनके अंदर, जैसे बोलते हैं ना बहुत 72 एंजल्स, 72 हूरों के पास जाओगे मर जाओ, तभी तो आता है ना टेररिस्ट, तभी बनते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर इतनी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स है कि वो किसी की जान भी ले लेते हैं अपने बंदे से। अपने आदमी को आप राजी हो जाओगे उनके भाषण सुन के कि मैं मर जाता हूँ, देशद्रोह पैदा हो जाता है। बट उनके अंदर और स्किल्स नहीं है, दे हैव इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। ठीक है, बट दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन, उनके लीडरशिप की एबिलिटीज नहीं है उनको। लीडर होते तो खुल के सामने आते, वो छुप के करते। ठीक है, सुपरविजन नहीं कर सकते वो, दे आर नॉट वेरी सुपर। बट एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर लीडर ऑलरेडी, बट दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लीडर है वो। But there are few people who are good, who are leader, who are motivational as well, who are having the good supervision skills as well, and who have best communication skills as well. And that's called a mixture or element of directing. वो अगर आपको बोलेंगे कि ये कर, तो आप करते भी हो और खुशी से भी करते हो। 100 में से 100 तो नहीं करते, 90, 80, 70 जो भी करते हैं, they listen to them. जैसे बाबाज होते हैं ना, ये जो इनके अंदर ये एबिलिटी बड़ी होती है, लोग इनके इशारों पे आ जाते हैं, चलते हैं। लॉट ऑफ रिलीजियस जितने भी है, चाहे मैं उनको फेक बोलूं या कुछ सही वाले भी हैं और कुछ फेक वाले भी, दोनों है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब तक पकड़े नहीं जाए तब तक वो सही है। पकड़े जाने के बाद तो खैर उनके फॉलोअर्स हट ही जाते हैं कुछ हद तक।
तो पकड़े जाने से पहले तो सभी सही है। तो डोंट यू थिंक दे हैव, अगर आप देखते हो, ऑफ कोर्स आई कांट नेम आउट द एनी ऑफ द रिलीजन और उनके बाबा, बट मैं देखता हूँ कि मैदान के मैदान भरे हुए होते हैं। तो पॉलिटिशियन को पैसे देके बुलाने पड़ते हैं और इन लोगों को, ये लोग पैसे देने आते हैं, चंदा चढ़ावा देने आते हैं। क्या वैसा उनके अंदर है? और वो जो बोलते हैं उनके घर में वही होता है, पूजा होती है, फोटो वोटो लगी तो भगवान के बराबर है। What is special in them? They are good at management, डायरेक्शन देना, बातें करना, बातें आती हैं, सुपरविजन, लीडरशिप नो डाउट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और मोटिवेट तो सर वो उनका काम भी बस वही है कि मोटिवेट करना आपको, मैंने बातें सिखाना, मोटिवेट करना, अच्छी अच्छी बातें बोलना आपको, ये सारे काम प्रवचन जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक अपने फील्ड में होता है, हर एक आदमी अपने फील्ड में एक मोटिवेटर है, हर एक आदमी डायरेक्शन है देता है। आपके फादर या मदर, वी लिसन टू देम ऑल्सो, वो क्या करते हैं, वो सुपरविजन देते हैं आपको लाइफ के लिए। कुछ आपके मैनेजर्स होते हैं वो करियर के लिए, टीचर्स होते हैं वो एजुकेशन के लिए। इट्स ऑल अबाउट your leadership abilities. Every person has. You might have in your friend circle that I am the leader, but कुछ लोग होते हैं चिल्ला चिल्ला के बनते हैं, they are not leader. चिल्लाने वाले लीडर नहीं होते कि लड़ाइयाँ करेंगे, नहीं तो वो लीडरशिप मीन्स जब सामने वाला आपको लीडर माने, ना कि आप मनवाओ, जबरदस्ती नहीं माने। ठीक है, तो डायरेक्शन के एलिमेंट्स क्या हो गए, समझ आ गए चार क्या क्या है? कोई बता सकता है? रेज है डायरेक्शन के एलिमेंट्स। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। समझ आया? व्हाट इज इफेक्टिव सुपरविजन? एक बेस्ट सुपरविजन किसको बोलोगे आप? अच्छा सुपरविजन कब होता है? सुपरविजन वर्ड समझते हो होता क्या है? सुपरविजन मतलब हर चीज के ऊपर नजर रखना। एक अच्छे सुपरविजन के लिए आपके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? सबसे पहले तो आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, मतलब कोई काम कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, पता तो आपको काम हो। वंस आई डोंट नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन, मैं दूसरों से कैसे करवाऊंगा, मैं उनकी कमी कैसे निकालूं? तो सबसे पहले खुद के अंदर स्किल्स। ओके, सेकंड लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए आपके अंदर? व्हाट एल्स? लीडरशिप पोजीशन होनी चाहिए आपकी, मतलब आपको काम तो आता है बट आप हो लेबर। काम तो दोनों को ही आता है, लीडर को भी आता है और लेबर को भी आता है, बट लेबर इज लेबर एंड लीडर इज लीडर। तो सबसे पहले स्किल्स होनी चाहिए और दूसरी स्किल्स के बाद आपके अंदर लीडरशिप पोजीशन जरूर होनी चाहिए आपकी। तीसरा, योर नेचर शुड बी सुपरवाइजरी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बॉसी नेचर रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं सब कुछ है बट फिर भी वो ना चापलूसी करते रहते। दैट शुड नॉट बी, वो नहीं होना चाहिए। नेचर सुपरवाइजरी होना चाहिए। आपको एक लेबर को अगर आप सुपरवाइजर बना दोगे ना, तो लेबर साइड में खड़े वो खुद ही काम करता रहता है, ऐसे करके चक्कर चक्कर में वो खुद ही पूरा दिन काम कर देता है, सिखाने के काम करवाना है। ठीक है, देन ग्रुप कोहेसिवनेस होनी चाहिए। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब ग्रुप इज अ डिग्री ऑफ अट्रैक्शन दैट ईच मेंबर हैज फॉर ग्रुप विद हाई। ठीक है, नेक्स्ट, cohesiveness produces better result because each member of the group works towards the attainment of common goal and prepared to share responsibility for the group work. Then supervision के लिए एक चीज और होनी चाहिए, that is improved relationship with the superiors. आप सुपरवाइजर हो तो आपके ऊपर भी तो कोई होगा, उसके साथ भी आपके बेटर रिलेशनशिप होने चाहिए। हाँ, एक ही है। कॉमन गोल्स के लिए काम करना, एकता है। ठीक है, देन व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब वो हिंदी में बता सकता हूँ? मोटिवेशन मतलब प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना, सोच को आप बदलना, उसको भरोसा दिलाना कि तुम कर सकते हो, या आई एम देयर, डोंट वरी, यू कैन डू इट। राइट, एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको, चेक वाला इवनिंग बैच में बताया था, बता देते हैं।
काफी सुना हुआ who did that batch that day. There was one of the fellow who was a good businessman. मैं short में बता रहा हूँ. He was a very nice businessman of Britain. And after a few years of the work, he got huge losses in the business. वो business में बहुत ज़्यादा losses हो गए. And after some time, he started thinking that I should not do the business. And उसने business की ओर छोड़ दी. He thought that I can't do business now. मैं जो भी काम करता हूँ उसमें loss होता है मुझे, तो मैं business को मेरे को नहीं करना चाहिए. तो ही थॉट टू क्विट द जॉब. उसने अपने बिजनेस को बंद करने का सोचा. साथ ही साथ उसने काफी सारी उधारी थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं. व्हाइल गोइंग फॉर सुसाइड ही वाज पासिंग बाय अ पार्क. वो पार्क से जा रहा था. पार्क से जाने के टाइम पे वो रोते रोते जा रहा था. एकदम से एक आदमी बेंच पे बैठा था, एक बूढ़ा आदमी. वो जोर जोर से उसको देख के ऐसा करके हंस रहा है, ऐसा करके हंसने लग गया उसके मुंह से. एंड ही स्टॉप. ही थॉट कि मैं मर रहा हूँ तो कम से कम मन में ये चीज रख के ना जाऊँ. कि उसको पूछा कि हंस क्यों रहे. Why are you laughing at me? He was like, why are you crying? तो उसने कहा मेरे बिजनेस में लॉस हो गया और मैं मरने जा रहा हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ. तो उसने कहा इतनी छोटी सी चीज के लिए मर रहा है. चेकबुक निकाली अपनी बुक पैंट में से, उसने पॉकेट में से, और चेक पे ब्लैंक साइन करके बोला ये चेक लेके जा. तेरे को जब भी पैसा चाहिए ना, इसमें इतना अमाउंट लिख जितना तेरा मन करे. ठीक है. तब तेरे को पैसा चाहिए, इस चेक में अमाउंट डाल, डेट भी लिख रहा हूँ, कभी भी इसको डिपॉजिट कर, तेरे को पैसा मिल जाएगा. पैसे के लिए क्यों मर रहा है, इतनी छोटी चीज के लिए मर रहा है. He thought very happy and he returned back. वहीं से उसने टर्न लिया एंड वो अपने ऑफिस गया एंड he started working. उसने सोचा कि इसमें अभी छोटा सा अमाउंट लिखूंगा, इससे बेटर थोड़े दिन और रुक जाता हूँ, थोड़ा और घाटा होगा ना तो बड़ा अमाउंट लिखूंगा. एक साथ चेक तो एक ही है. He started working. उसने काम करना शुरू किया. वापस धीरे 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 आफ्टर सम टाइम उसका जो घाटा था सारा ओवरकम हो गया अपने उससे. वो हमेशा उसके दिमाग में था कि चेक तो पड़ा है अपने पास, कोई टेंशन वाली चीज है ही. धीरे 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 उसने करते 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 पहले से भी ज्यादा डबल एम्पायर उसने खड़ा कर दिया. धार खत्म, लॉसेस खत्म, और अपना डबल से भी ज्यादा एम्पायर, और उसका चेक अभी भी पड़ा. He thought I should return back this check. मुझे चेक वापस दे देना चाहिए क्योंकि मेरे पास खुद के पास इतना पैसा है, क्यों मैं किसी को. अपन जैसा नहीं था लालची, तो कुछ तो भर लूँ इसमें. तो यही तो अपन जैसा नहीं आते हैं, हम बहुत जल्दी जंप करते करते. Then he thought that I should return back the check and of course because that वो उस आदमी ने कितनी हेल्प की उसको. सोचिए ना, वो मर रहा था, उससे उसको कहाँ पहुँचा दी. Then he went back to that park and same time उसने उस टेबल पे सर्च करना शुरू किया. सिर्फ मॉर्निंग टू इवनिंग बैठा वहाँ पर. इवनिंग में पार्क बंद करने के लिए गार्डनर आया, पर वो आदमी आया नहीं उस दिन. That day he did not turn up. That old man who was laughing. So evening at a time when the park was supposed to close and the gardener came and told that businessman who was supposed to die, who was going for dying, hey, I have to close the park doors. Please, you have to leave for the day. He said, why are you sitting since morning? You are sitting. What happened? उसने कहा there was one of the old fellow and he was laughing at me. उसने स्टोरी बताई उसको that मेरे को उसको चेक वापस करना. वो गार्डनर का भी तो पागल है क्या. वो पागल था. वो हर जेब में ना वो घाटा लगा हुआ आदमी था और वो चेक रखते हैं अपनी पॉकेट में और सबको बोलता है मैं बहुत बड़ा करोड़पति हुई, चेक पकड़ो, बहुत बड़ा करोड़पति हुई, चेक पकड़ो. ऐसा वो फाड़ फाड़ के चेक देता रहता है सबको, तो उसको वापस चेक देने आया है. He could not tell the whole story and he started crying. But the moral of the story was everything is within you. Everything is within you. It is a simple support. एक इनडायरेक्ट इनविजिबल सपोर्ट है आपको. उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया. करा किसने सारा काम? सिर्फ खुद ने किया. ठीक है, खुद ने किया. कुछ भी नहीं था, बस मोटिवेशन की वजह से उसको कितना हेल्प किया. ठीक है, उसने वो चेक फ्रेम करवाया और उसके आज भी ऑफिस में लगा. और ये रियल स्टोरी है, गूगल पे चेक करो. अब आई स्किपिंग द नेम, गूगल पे चेक करो स्टोरी पर, कुछ वर्ड्स डालते मिलेगी. उसने वो फ्रेम करवा के, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने चेक फ्रेम करवा के रखा हुआ चेक. एक पागल आदमी आपको अगर समझा मोटिवेट कर सकता है, तो आप जिनमें दिमाग दिया भगवान ने वो कितनों को कर सकते हो. बट वेयर डू वी वर्क? वी वर्क टू डीमोटिवेट अदर्स. हमारी आधी लाइफ किसमें, आधी क्या हमारी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ किसमें निकलती है? दूसरों की कमियां निकालने, गलतियां निकालने. ठीक है. और जो पागल था उसने कितना बढ़िया काम कर दिया उसने.
तो rather than working on that part, we should work to motivate others. उसमें तो दिमाग नहीं था तो उसने मोटिवेट कर दिया, सोचो हमारे अंदर दिमाग है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मोरल इज one line only, that is everything is within you only. Sometimes we just forget about that part. There is someone, if that person brush up that thing, तो हम उसको काम करने लग जाते हैं वापस उस चीज के ऊपर. That is motivation. Motivation is not that they will teach you, वो skills बढ़ाए, education दे आपको, वो motivation नहीं है. Motivation is something आपके अंदर already है वो चीज, हमें तो उस चीज को ऊपर लेके आना. That is motivation. ठीक है, डांटने से, फटकारने से, लड़ने से, समझाने से, कैसे भी आए, मोटिवेशन आना चाहिए. ठीक है, दैट इज मोटिवेशन. तो मोटिवेशन समझ आया क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? इंस्पायर करना दूसरों को. मोटिवेशन इज इंस्पायरिंग अदर्स. ठीक है, बाय एनी मीन, वो आपकी इच्छा है, लड़ो, डांटो, मारो, पीटो, जो मर्जी करो. सेना, और आज का कॉन्सेप्ट नहीं है मोटिवेशन. हजारों, करोड़ों, लाखों सालों से जब भी सेना में युद्ध करने जाते थे ना, वो उस टाइम से पहले सेनापति जो होता था वो चिल्ला चिल्ला के बात करता था. देखा होगा पिक्चर्स में आपको, तो वो चिल्ला चिल्ला के बात करता था, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी मातृभूमि के लिए हम ये कर सकते हैं. वो उस चीज से क्या करते थे वो बेसिकली आपके अंदर, आप जब आर्मी के और ये जब देखते हो लड़ाइयाँ, और अपने अंदर खून भी खोल जाता है. ठीक है, क्या है वो सब चीज? वो सारा मोटिवेशन है, आपके अंदर है ऑलरेडी. You love your country, you love your army. It's just that sometime that need to be boosted up. ठीक है, वो टाइम पे आपको चाहिए होता है. You love your family a lot, but if रोज तो नहीं दिखाते ना, किस टाइम आके दिखाते हो सबसे ज्यादा? अगर आपकी फैमिली पे कोई पिन पॉइंट करे, कॉल जाता है ना, तो वो that is a motivation for showing love and affection for your family. And so your parents even do the same thing. सारा दिन आपको डांटते हैं, मारते होंगे, सब कुछ है, बट when someone else come up and do the same thing, वो नहीं करने. ठीक है, वो टाइम उनको मोटिवेशन मिलती है. राइट, आप पास होते हो, फेल होते हो तो वो कहते हैं छोड़ दे, अभी अपने बस का नहीं. पास होते हो तो चाहे उनके पास पैसा नहीं भी है, तब भी वो क्या होते हैं, आगे मोटिवेट होते हैं कि नहीं, ये कुछ करेगा, कैसे भी अरेंज करेगी, he or she can do anything. राइट, दैट्स मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली किसी को इंस्पायर, किसी की सोच को बदलना, किसी सोच को इंस्पायर करना, स्टिमुलेट, एनकरेज करना. और हम बिजनेस में किसके लिए यूज करेंगे वर्ड? सबऑर्डिनेट्स के. सबऑर्डिनेट्स के. ठीक है, इन द वर्क गोल कंटेक्स्ट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स स्टिमुलेट द पीपल बिहेवियर. अपने काम की जगह पर आपको क्या चीज मोटिवेट करेगी? काम करने, वर्क प्लेस पे आपको क्या चीज मोटिवेट करेगी? मनी. वर्क प्लेस पे आपको कोई रिलेशन तो नहीं बनाने, वहां पर क्या है? आपको मनी, पैसा मोटिवेट करता है. पैसा, सक्सेस, प्रमोशन, पार, रिकॉग्निशन, मतलब नेम फेम मिलना आपको, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क. व्हाट एल्स कैन मोटिवेट यू? मोटिवेट भी हर कोई नहीं हो सकता ना, जिसको डिजायर है ना उसी को हो सकता है. तो किसी को मोटिवेट कर रहे हो, कोई इतने ढीले आते हैं, हो जाएंगे सर, पास छोड़ो, ठीक है सर, हो जाएंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं. उनको पास ही चाहिए, जिंदगी में सपना ही पास हो, तो उनको कहाँ से आप रैंक के लिए मोटिवेट करोगे? बड़े ढीले ढाले से आते हैं, लटके हुए से पहुंच जाएंगे क्लास. उनको सीढ़ी की जगह रस्सी होना तो वो आधे घंटे तक रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाए. इस टाइप के लोग एकदम ढीले डाले, लटके हुए से. तो एक खुद के अंदर डिजायर होनी चाहिए. देयर इज अ नीड आल्सो टू गेट मोटिवेटेड. ठीक है, नीड होनी चाहिए. एंड वी नीड अ satisfaction accomplishment of goals. हेल्प किस में करता है? मोटिवेशन, गोल को अचीव करना. ठीक है, यू मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन का क्या फायदा है? कोई बता सकता है कि इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन इन द मैनेजमेंट के प्रोसेस में मोटिवेशन का फायदा? अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, और वर्क एफिशिएंटली होगा. वर्क वो सारा उल्टा कर दो ना उसका. वर्क एफिशिएंटली, आइडल रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होंगे, आपका गोल अचीव होगा, ग्रुप गोल अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, आपका इंडिविजुअल गोल अचीव होगा. और
हार्डवर्क करेंगे, ग्रोथ होगी, वही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, टीम की, है ना, टारगेट्स, ये सब होने पे प्रॉफिट बनेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, पार बनेगी, इमेज बनेगी कंपनी की और खुद की, राइट। तो दैट इज अ मोटिवेशन। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक होता है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, अच्छा, व्हाट इज साइकोलॉजिकल मोटिवेशन? साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्या होता है? जैसे अभी मैंने एक स्टोरी सुनाई आपको, तो वो कौन से में आएगा? वो साइकोलॉजिकल है, दिमागी तौर पर। जैसे मैं भी आप लोगों की शक्ल देख रहा था, तो जब मैंने लास्ट में क्रक्स बताया कि वो पागल था, तो एक शक्ल बनी थी ये हंसने वाली, कुछ लोगों का था शॉकिंग वाला, कुछ लोगों का था ये क्या हो गया। देयर आर सर्टेन पीपल वो थिंकिंग कि यस दिस इज समथिंग मोटिवेशन। कुछ लोगों ने उससे लर्निंग ली, कुछ लोगों को कहानी लगी, वो स्टोरी अच्छी थी, 5 मिनट वेस्ट हो, चलो। हर एक तरीके का अलग अलग इंसान है, हर एक तरीके की सोच होती है, तो सब कुछ डिपेंड ही किस पे करता है? सोच, ठीक है। और सोच को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल थिंकिंग। आप तो आप किस चीज को किस तरीके से समझते हो, वो क्या आपकी साइकोलॉजी नहीं बोलते हो, साइकोलॉजी क्या आपकी बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस, सोच है। जैसे कईयों को लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, अभी अपन न्यूज पढ़ते हैं ना, दुनिया खत्म होने वाली है, तो कुछ लोग खुश होते हैं, एग्जाम से पहले पहले हो जाए, या चलो एग्जाम की फीस भर दी, रिजल्ट से पहले पहले हो जाए। देयर इज अ फैमिली, वो फैमिली पिछले 8 साल से अंडरग्राउंड में रह रही है, इस तरीके का अंडरग्राउंड बनाया उन्होंने कि दुनिया खत्म होने वाली है कभी, 8 साल से वो वहां पर रह रहे हैं। वो भी एक टाइप के लोग हैं, उनकी भी थिंकिंग है वैसे उनकी। दुनिया खत्म होगी तो वो बेसमेंट में इस तरीके का उन्होंने एक एटमोस्फेयर बनाया, एक घर बनाया कि उसमें इफेक्ट नहीं होगी दुनिया खत्म होगी, उधर रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, डबल स्पीड से काम करते, खत्म होने से पहले पहले और नाम बना लेते, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं फालतू बकवास है, दुनिया खत्म, कुछ नहीं होगी, करियर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। दुनिया खत्म होगी होगी तब की तब होगी, लेट्स गो विद द फ्लो, ये वाले लोग भी। कुछ ऐसे मजबूरी है, खत्म हो ना हो अपने को तो करना पड़ेगा, ठीक है। हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? फोर्थ वन सबसे वर्स्ट है। हम कौन से में आ रहे हैं वो खुद सोच लो कि ठीक है खत्म होगी तब होगी, करना तो पड़ेगा, इंतजार तो नहीं कर सकते, हो जाए तो बढ़िया है, बाकी चल रहेगा। तो और प्रॉब्लम पता है क्या है? मरने से सब डरते हैं ना, अभी नोबडी वांट्स टू डाई, पर दुनिया खत्म होने से सब बड़े खुश हैं। लाइक सोच जो है ना, हमारी साइकोलॉजी जो है, दुनिया खत्म हो जाए बहुत बढ़िया बात, पर मरने से सब डरते हैं। पता है इसमें दुनिया खत्म होने में क्या अच्छा लग रहा है इनको? दूसरों को, अपना तो छोड़ो, दूसरों का कितना घाटा हो रहा है, सर साथ वाले का कितना घाटा हो रहा है, सोचो वो मर जाएगा। अपन क्यों नहीं मरना चाहते पता है यार? वो कहीं ग्रोथ ना ले ले, मेरे मरने के बाद उसका नाम ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम अपनी ग्रोथ से नहीं, दूसरों की ग्रोथ से, और ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है। क्यों ना आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो, और दूसरे को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो भाई? अपने बारे में सोचो ना भाई, आप खुद सोच के देखो, जो मैंने बताया आपको एकदम 100% सही शॉट है, ठीक है। आप अपने बारे में सोचो ना, गेट मोटिवेटेड, साइकोलॉजिकली खुद मोटिवेट हो। अगर इतनी महंगाई के जमाने में कौन आपको मोटिवेट करेगा रोज रोज, क्यों करेंगे? खुद हो, और महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको डेवलप करना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन नाम का कॉन्सेप्ट, अपने आप को खुद मोटिवेट होना है। दूसरों को देखोगे तो जलन और ईर्ष्या वाला मोटिवेशन मिलेगा आपको, जलन होगा, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। और अगर सेल्फ मोटिवेशन होगा ना, तो एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू, और इतनी ज्यादा स्पीड से काम करोगे, आप थकोगे। दैट इज साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। द ब्रेन फंक्शन as a high fidelity tape recorder, so if the recorder is a pleasant or a happy experience, the reason will always be motivated। ये कहता है ब्रेन जो है आपका, वो क्या है? एक रिकॉर्डर है, एंड अगर आपका रिकॉर्डर हैप्पी है, प्लेजेंट है, तो एक्सपीरियंस हमेशा क्या होगा? खुशी वाला होगा। अगर आप दुखी वाली चीजें पढ़ोगे, दुखी वाली चीजों को सुनोगे, उनसे सारा दिन उसी माहौल में, उसी में दिमाग लगा के रखोगे,
मैं कुछ नहीं कर सकता, यार फेल ना हो जाओ, एग्जाम आ गए, ये वो, जिससे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ बहुत टेंशन में आ जाते एग्जाम में। अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़े दिनों में ऐसा ज़ोंबी टाइप घूमोगे। जैसे से एग्जाम पास में आता जा रहा है ना, एक तो स्ट्रेंथ गिरेगी क्लास की, दूसरा ऐसे लाशों की तरह घूमते रहते हैं। उनको कोई बोल दे तो कुछ नहीं, नेगेटिव बोलेगा ना कोई, बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करेंगे वो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, सही कह रहा है, छोड़, पेपर देने जा रहा हूँ बस क्योंकि वो भी जाना पड़ेगा, कैसे लगे मैं, अदरवाइज तो फेल तो मैं पक्का हूँ, या पास हो भी जाऊंगा पता नहीं, भगवान भरोसे जा रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। जिनको ऐसा लगता है कि अपन ऐसे, और सबसे बड़ी चीज है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती है, ग्रेविटी से भी ज्यादा अट्रैक्शन होता है नेगेटिविटी। ये एक फेमस सेइंग है, नेगेटिविटी हैज अ मोर अट्रैक्शन देन ग्रेविटी। ग्रेविटी तो खाली ऊपर से नीचे का करते हैं ना, नेगेटिविटी तो सर दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई सा भी साइड 10 दिशाओं से आ सकती है। 10 दिशा होती है ना हमारी, किधर से भी मिलती है। ग्रेविटी तो एक ही साइड से मिलती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मोटिवेशन का ऑपोजिट होता है। तो यू मस्ट हैव टू टेक द पॉजिटिविटी, स्टे हैप्पी, प्लेजेंट, जो होना है वो तो रहेगा, डू द वर्क एज वेल। खाली खुश होना, पागलपन नहीं रखना है, खुशी हो रहे पास पक्का है, बट साथ साथ में काम करना है। ठीक है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल आपका मोटिवेशन होता है ये। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजेक्शनल। जैसे पहले लास्ट पैरा पढ़ो, द रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस एंड फीलिंग एसोसिएटेड with them are available for reply today in as a vivid a form as when they happened, and provide much of the data which determine the nature of today's transaction. Dr. Eric Berne developed this concept further and devised a scientific method to study human behavior. He oriented ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। तो उसने क्या डेवलप किया, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। सर रादर देन पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि एग्जाम टाइम पे अगर आप इस चीज़ को समझते हो ना अपने लिए, ट्रस्ट में इट इज सो हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी। अगर आप अपने लिए इस चीज़ को पढ़ोगे ना तो ये आपको लाइफ टाइम बड़ी हेल्प वाली चीज़ है, नॉट फॉर स्टडीज। ये चैप्टर आप एग्जाम में कर लो, डायरेक्टिंग जो है वो वैसे भी हो जाएगा, बट अगर आपका जो अगर दिमाग सही हो जाए हमारा, तो उससे बड़ा कुछ भी अचीवमेंट नहीं। अगर हमारा ब्रेन अगर सही डायरेक्शन में काम करने लग जाए तो हम वो काम जो 200 दिन में हो सकता है हम 20 दिन में कर सकते हैं। ट्रस्ट में वही चीज चाहिए, वो चाहिए आपको अपना एनालिसिस चाहिए। सो एरिक बर्न ने किया, अनदर अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न, ट्रांजेक्शन इज अ यूनिट ऑफ सोशल इंटरकोर्स। सोशल इंटरकोर्स क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं वो क्या है, सोशल इंटरकोर्स। People encounter, when two or more people encounter one another, sooner or later one of them will speak or give some indication of acknowledging their presence. होता है, मतलब ऐसा हो, ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ो उसको, नोट फॉर एग्जाम अपने लिए पढ़ो। अभी कोई थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि अपने को एग्जाम भी है। सो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, एक चीज जो मेरे को, जो मेरा एक एनालिसिस है वो ये है कि दूसरे वाला हमेशा दूसरे की भाषा बोलने लग जाता है। समझ आया? दो लोग या दो से ज्यादा लोग अगर मिलते हैं ना, तो उसमें से एक हमेशा दूसरे की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी भाषा बोलता है। भाषा बोलने मतलब ये नहीं करेगा वो गाली दे रहे तो गाली, मतलब उसकी सोच, उसकी थिंकिंग। और ज्यादा दिन उसके साथ रह जाओ तो वो ऐसे हो जाते हैं जिसको अपने बूढ़े बुजुर्ग बोल के संगत का असर होता है। दोस्त अगर बड़ा दुखी है तो हम भी दुखी रहते हैं, अगर आप सुपीरियर हो तो वो खुश रहने लग जाएगा, है कि नहीं? अगर वो बिगड़ा हुआ है तो हम भी बिगड़ जाएंगे। वो अगर पढ़ाई में तेज है तो हम भी थोड़े दिन नहीं तो अगर वो बेटर है और स्ट्रांग है तो हम पढ़ाई में तेज हो जाएंगे, है ना? पर हम सर उस गली जाते ही नहीं जहां पढ़ाई वाले दोस्त मिलते हैं, उन लोगों के साथ अपनी बनती नहीं। आप तो कह रहे हो ना कि दोस्त होना चाहिए, सर पढ़ाई में तेज दोस्त होगा तो अडॉप्ट होगा। हम ऐसे लोगों को दोस्त ही नहीं बनाते जो पढ़ाई में तेज होते हैं, क्योंकि उसको मैं पसंद नहीं और मुझे वो पसंद नहीं, ठीक है?
तो when two or more people encounter one another, sooner or later one of them will speak or give indication of acknowledging their presence. Hi, hello, या कुछ भी. अगर आपने बात भी नहीं करते तब भी एक कहीं ना कहीं लुक, हमारे शक्ल पे बदलाव. पार्टी में अगर दो दोस्त हैं, आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड कोई है जिससे आपकी बनती नहीं है, बट यू सॉ दैट पर्सन, क्या आप उससे 100 कदम दूर भी एक्नॉलेज कर लेते हो, उसकी प्रेजेंस आपकी शक्ल पे आएगी, सेकंड के लिए भी आ जाती है. ठीक है, फिर आप अपने दिमाग को डायरेक्शन देते हैं, अपने को क्या करना है, लेट इट बी बिजी रहे. ठीक है, देर हो ना एक्नॉलेजमेंट. ये क्या है, ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आपका कुछ चीज़ है, उसको ट्रांजेक्शन एनालिसिस किया. ठीक है, एरिक ने. फिर उन्होंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल स्टिमुलेशन. The other person will then say or do something which is in some way related to the stimulation, and that is called transitional response. और वो सामने वाली पार्टी भी कुछ रिस्पॉन्स देती है. अभी उससे छोड़ दो, लड़ाई वाले से गुड वाले पे आते हैं कि आपके दो दोस्त मिलते हैं तो आपस में स्माइल पास करिए, एक ने तो दूसरे ने भी करें. तो जब पहला एक्नॉलेज करता है तो वो ट्रांजेक्शन स्टिमुलस है, एंड जब दोनों कर लेते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांजेक्शनल रिस्पॉन्स. याद रहेगा एग्जाम के लिए भी. ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस क्या है, फर्स्ट वाला जब एक्नॉलेज करता है दूसरे की प्रेजेंस, नोट्स बनाने तो बना लेना. व्हेन द फर्स्ट पर्सन एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ अनदर, इट्स कॉल्ड द ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस. एंड व्हेन द अदर वन आल्सो रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस, देन इट इज कॉल्ड एज जी बताएं. The recorded experiences and feelings associated with them are available for reply today. जी, कौन से वाले में, साइकोलॉजिकल में? हाँ, ऊपर वाले में जो वो है कि are available for reply today. The recorded experience and feeling associated with them are available for reply today in as vivid as a form when they happen and provide much of the data. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको, आप जो चीज़ें सुनते हो, जो चीज़ें देखते हो, वैसा बिहेव करते हो. आप 10 दिन दुखी वाले सॉन्ग सुन लो, जिंदगी बहुत अच्छी और हैपनिंग है आपकी. 10 दिनों में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ. ठीक है, 15 से 20 गाने सुन लो आप एक दिन में. शाम के टाइम की आपकी टोन जो होगी ना, वो बहुत लटकी भी हो जाएगी. योर माइंड इज अ रिकॉर्डर. आपका दिमाग जो है वो रिकॉर्डर है. आप जो चीजें देखते हो, सुनते हो, वैसा बिहेव करते हो. दैट्स साइकोलॉजिकल ट्रांजेक्शन, साइकोलॉजिकली थिंकिंग अबाउट. आप अच्छे गाने सुन लो, मोटिवेशन वाली वीडियो सुनो, आवाज सुनो, बातें सुनो. जैसे अगर मैंने कुछ मोटिवेशन वाला बताया, आपने रिकॉर्ड कर, आपने एक्नॉलेज किया उसे, और आपको लगा यस आई कैन ऑल्सो डू एनीथिंग, मैं कर सकती हूँ, तो वो भी क्या आपका, वो भी एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर है. ठीक है, हाँ, ये आप ट्राई कर सकते हो. कुछ चीज़ें तो हम अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं, कोई साइंस नहीं चाहिए इसके अंदर. ट्राई कैसे कर सकते हो आप, सिंपली किसी को ट्राई करना है तो अगर आपको लगता है बड़े खुश रहते हो तो 15 से 20 दुखी और रोने वाले सॉन्ग्स डाउनलोड करो और उनको सुन लो, और रिपीट बेसिस 2 बार. तीसरी बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा सुसाइड कर लो, लाइफ इज नथिंग. एंड उसके ऑपोजिट आप मोटिवेशन की स्पीच सुनो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो. ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स के सॉन्ग्स होते हैं ना जो मोटिवेशन देते हैं, वो सुन के देखो, आपको लगेगा यस आई कैन डू एनीथिंग. ये अच्छा एक बूस्ट मिलता. ठीक है, वही आप जैसे मैंने कहा कि आप ढीले ढाले लोगों की बातें सुन लो, नेगेटिव बातें सुनो, नहीं है कुछ अच्छा नहीं है ये वो, आपको लगेगा छोड़ो पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ नहीं है. कुछ जो जैसे मैंने टेररिस्ट का बताया, उनको वो चीज़ें बताई जाती हैं, लाइफ में कुछ नहीं रखा, मरोगे तो 72 बुरे मिलेंगे और वो क्या बेसिकली रिकॉर्डर में होता है. एंड दे वर्क ऑन दैट, दैट इज ट्रांजेक्शन कर देते हैं उसके ऊपर. एक आदमी एक्नॉलेज करता है तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन स्टिमुलस, और दोनों ने उसको रिसीव भी कर लिया, वो क्या है
response. Transactional analysis is the method of examining the social intercourse of this type. It helps in finding out why people do as they do by determining which part of multiple nature individual is being activated in any transaction. Ego state. ईगो स्टेट को ना 3 पार्ट में बांटा गया टैग. Multiple nature of individual which are recorded in the brain and are replayed in the course of a transition as described as parent, child and adult ego state. 3 लेवल की ईगो स्टेट आपकी. देखो नीचे एक डायग्राम लिखा हुआ उसको समझ के. पेरेंट वाला पढ़ना है. ये रियलिटी है जो आप पढ़ रहे हैं. पर पेरेंट वाला पढ़ के देखो आप. होता है कि नहीं. What a child sees his parent doing and what he hears from them are recorded straight. जैसे कहते नहीं कि बच्चों में जैसे सबसे पहला डायलॉग सुनने को मिलता है कि ऐसी परवरिश आपकी. थोड़ी सी परवरिश माँ बाप थोड़ी सी कहते चोरी करो. माँ बाप जो करते हैं हम देखते हैं और वो काम हम कर लेते हैं. ठीक है. बेसिकली क्या है यू लर्न एंड बच्चे में माँ बाप दिखते हैं कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आए हो कैसे माँ बाप हैं. ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको समझ आ जाता है. ठीक है. तो इसमें लिखा है what child see his parent doing what he hears from them are recorded straight in his mind in the first 5 years. अभी तो बोलते हैं ना बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए छोटे बच्चों के सामने. ठीक है. Thus hostility of parents is recorded with the terror and love with the pleasure. Thousands of numbers and repeated don't are recorded in his cassette. It is thus the toughest concept of the life. The recordings are available for replay throughout the life. ये वाली recording सर आपकी एक रील खाली है. आपकी जो दिमाग है आपका एक ब्लैंक रील है. उस रील पे सबसे पहली जो कॉपी होती है वो कभी भी हट नहीं सकती. समझ आया. उस वक्त शायद आप उसको रिपीट ना कर पाओ बट वो चीजें तो आपके दिमाग में फिट है. समझो मेरी बात. अगर एक बच्चा जो है उसको कुछ चीजें इस उम्र में सीखी उसने तो उसको डांट के वो चीजें हटवाई जा सकती है. ये भी गलत है क्योंकि वो कर रहा है वो काम हमें दिख रहा है. बट 1 से 5 साल की उम्र में उसने चीजें सीखी है खाली वो करता नहीं है कुछ भी. उन चीजों को वो बाद में करता है. जैसे क्रिमिनल बने चोरी करना सीखा झूठ बोलना सीखा चालूपना क्लेवरनेस. कुछ लोग दुखी से रहते हैं. कुछ लोगों को मोटिवेशन रहता है लाइफ टाइम काम करना है. रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कुछ छोटी उम्र में. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट 5 इयर्स में या फर्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स में सीख लेते हैं वो चीज़. यस वी हैव टू. उनके दिमाग में बैठ सेट होती चीज़ें कि मुझे काम करना है. माई फैमिली इज इन माई नीड या मेरी फैमिली को पैसे की जरूरत है. मुझे कुछ ना कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा. तो वो बचपन से ही उस चीज़ में रहते हैं. कुछ लोग बड़े चुप से रहते हैं शांत. कुछ बड़े खुश से रहते हैं. अलग अलग इंसान होता है ना.
ठीक है, आप उनको कितना भी सिखा दो वैसे हैं वैसे रहेंगे वो। आधा एक घंटा लेक्चर के बाद वो शायद बदल जाए, बट बैक टू नॉर्मल लाइफ आते आते वो तो सर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो है। उसके ऊपर कितना भी पेंट कर दो, पेंट तो वॉश होना है। बेसिक जो आपकी ब्रिक्स है वो तो फर्स्ट 5 इयर्स में बन चुकी होती है। ठीक है, तो the recordings are available for replay throughout the life. These are reflects the such words as work hard, don't worry, everything will be okay, done well, never do it so again, and such actions are outstretching of arms, hugging, footstepping, blessings and तो कुछ आपको हर एक इंसान के कुछ नेचर में अलग अलग बदलाव लगते हैं, देखने का, सोचने का नजरिया हर एक का अलग होता है। अब इंसान की सोच से इंसान कैसा है वो समझ जाते हैं, उसके तौर तरीकों से। कुछ लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं तब भी हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है वो गुस्सा कर रहे हैं पर वो बुरे नहीं, हाव हाव सब समझ जाते हैं। कुछ लोग बड़ा मीठा बोलते हैं तब भी हमें पता है ये आदमी ठीक नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है वो चीज हमें भी समझ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर साइकोलॉजिकल लर्निंग, ये साइकोलॉजिकल लर्निंग। तो पेरेंट का स्ट्रिक्ट, दूसरा चाइल्ड, दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द लिटिल पर्सन टू what he sees and hear. It is done simultaneously with the recording of external and imposed event which have been described as a parent. Most of the reactions of the child are feeling he is small, he is dependent, he is clumsy and so on. When a person in his grip of not to leave me, when a person is in the grip of feeling, we say that his child has taken over. It is thus the felt concept of the life. It is reflected in such word, do not leave me, I would not do it again, I would not do so again. ये बच्चा करता है ना ऐसा, जब उसको आपने गोदी उठाया होता है, हवा में उछालते हो, तो आपको कहता कुछ भी नहीं, बट उसकी फीलिंग होती है, दिख रहा होता है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली आपको एक चीज कह रहा है कि डू नॉट लीव मी, तो उसको भी लगता है, ठीक है। शायद उतनी छोटी उम्र में समझ ना हो, बट एक बार गिरने के बाद तो पक्का लगेगा, पर तब भी वो हवा में चला जाता है, बट विद अ फीलिंग कि डू नॉट लीव मी, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। अगर वो कुछ गलती करता है, आप उसको डांटते हो, चाहे बच्चे को बोलना नहीं आता, हम उसको डांटते हैं ना, तो एक मैसेज देना चाहता है, वो चुपचाप सुनता रहता है, और ही स्टार्ट क्राइंग, he or she starts crying, बट वो क्या मैसेज देते हैं? वो कहते हैं आई वुड नॉट डू सो अगेन, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। आई विश, आई वॉन्ट, ये सारी चीजें बच्चे मैसेज देते हैं। एंड इन सच एक्शन आर टीयरफुल आईज, सरप्राइज ऑन फेस, एंगर, प्लेजर, प्लेडिंग फॉर समथिंग, बी प्लेफुल। एंगर तो बच्चों में थोड़ा कम ही देखा है मैंने, ठीक है। एंगर तो हम बड़े होने के बाद सीखते हैं, ये तो हमारी खुद की डेवलपमेंट है, भगवान ने नहीं दी है। अगर भगवान ने दिया होता ना तो बच्चा भी करता, आंखें बनाना और ये सब करना, बातें ना करना, मुंह फुलाना, ये बच्चा करता। बट एंगर जो है वो एक ही ऐसी चीज है जो हमने खुद ने बनाया। एंगर, घमंड, ये सब तो इंसान की बनी हुई चीजें हैं, भगवान ने नहीं दी। भगवान ने आपको रोना भी दी है, हंसना भी दी, भूख प्यास सब दी, बट गुस्सा नहीं दिखाया। ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट है, और जो चीजें आपकी सेल्फ डेवलपमेंट है ना, ये परमानेंट नहीं होती। इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज चेंज दैट, हमेशा उस चीज में वर्क ऑन कर सकते हैं एट एनी एज। अडल्ट, तो पेरेंट्स आपको कौन से कॉन्सेप्ट सिखाते हैं? टफ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। टफ कॉन्सेप्ट, टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, अडल्ट टफ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, और चाइल्ड फीलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। बच्चा तो कौन से कॉन्सेप्ट, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बताता है आपको? फीलिंग। माँ बाप टफ कॉन्सेप्ट, और अडल्टहुड में आप क्या समझते हो? थॉट concept of the life. That is when the child is able to move about 10 years, the recording of the adult also starts. एक और recording start हो जाती है उसकी, adult recording. The self actualization is beginning to adult. An important function of adult is to examine the data in the parent, whether or not it is true, or examine the child to see whether or not the feeling are appropriate to the present
In thus the tough concept of life during the early years, adult is fragile and indecisive. It cannot change the erase the recordings in the parent and the child. मतलब मैंने क्या कहा आपको, सबसे कुछ लर्निंग्स आपकी लाइफ की कहाँ कहाँ से आती है. एक तो आती है आपकी खुद की जो भगवान देके भेजता है, दैट इज चाइल्ड. एक होती है पेरेंट लर्निंग. पेरेंट लर्निंग कौन सी होती है? जो माँ बाप को पहले 5 साल में आप देखते हो वो सीखते हो. एक होती है 10 साल के बाद आपकी खुद की सोच, गुस्सा, हैबिट्स. ये आपकी खुद की सोच है, ये आप चीजें सही और गलत को डिसाइड करके फिर आप खुद करते हैं. सॉरी 10 साल हमारी एज में या फिर आफ्टर दोस 5 years? ये 10 साल जो है ये आपकी एज, मतलब बच्चे की जो एज है उसके बाद में. तो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ. अडल्ट किस तरीके के सवाल करता है? वाई, क्यों ना करूं, मैं नहीं तो कौन, समझ आया? क्यों नहीं करूं, मैं नहीं तो कौन करेगा, हु आर यू टू से मी सच काइंड ऑफ थिंग. चाहे वो माँ बाप हो या कोई भी हो, बच्चा नहीं बोलता कभी हु आर यू. तब बच्चे थे, किसी ने अपने मम्मी पापा को ये नहीं बोला होगा वाई आई कांट डू दिस थिंग. वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता. आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? बट अभी अडल्ट हो गए सारे, हम बोल सकते हैं और बोलते होंगे शायद कि कई ऐसे होते हैं बोल देते हैं माँ बाप को मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती. वो कर सकता है ना. आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, हु आर यू, एक्सेट्रा 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 थिंग. And such actions as listening, thinking, pondering and reflecting. There are certain transitions are called as cross transition. क्या होता है cross transition? देखें, any social intercourse, any social intercourse may be parallel or cross. The parent child adult transition are parallel. These are complementary and can go on indefinitely, except child transition, which are few as a child is cut stroke rather than the give stroke creature. Okay. Parent child, child parent, parent adult और etc. is example of cross transition. Cross मतलब अलग एज, अलग भाव, अलग सिंगिंग, सारी ये होगी क्रॉस. और सेम वाले हो गए चाइल्ड अडल्ट सेम लेवल पे, वो होगी पैरेलल. छोटे बच्चे कैसे आपस में बात करें? हाँ, क्या बात है. बिलो 3 बिल्कुल करते हैं. तो मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा होने के तीसरे दिन भी बात कर लेता है. तो तीसरा दिन कह रहा हूँ मैं, वो दूसरे दिन भी कर लेता है. वो अपनी माँ से बात नहीं करता, तो मतलब कम्युनिकेट करता है. ही हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इतना तो पक्का है ना. इफ ही हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, वो दूसरे से करता है नहीं करता उस पर मैं सवाल उठा नहीं सकता, बट इतना तो पक्का है ही डज कम्युनिकेट. जो उसको बोलना होता है. अभी आप 2 छोटे बच्चों को साथ में छोड़ दो, एक छोटे बच्चे का अगर पैर या हाथ दूसरे का लग जाएगा तो क्या वो अपने रोने से कम्युनिकेट कर देगा? ये नहीं कर सकता. वो बच्चा जब भूखा होता है तो अपनी मदर को कम्युनिकेट करता है रोके, ये नहीं करता. खुश होता है तो करता है, रोता है तो करता है. तो बस कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन एबिलिटी तो है. अब आप कहते हो कि सर कुछ मैंने देखे हैं वो नहीं करते. हाँ, वो चीज़ सर एक्सेप्शनल है, करते हैं. चले आगे. पीछे वाला इलस्ट्रेशन पढ़ लो एक बार जल्दी से. चले,
What are the benefits of transaction analysis? Transaction analysis के क्या क्या benefits हैं? Transaction analysis can give employees fresh insight into their own personalities and can also help them to understand why others sometimes respond as to do. क्यों दूसरे X टाइप का बिहेवियर आपके साथ करते हैं, वो आपको एक सोच या साइकोलॉजी समझने की मदद मिलती है. मेजर बेनिफिट ऑफ ट्रांजेक्शन एनालिसिस इज टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब आपस में मतभेद है आपके, वो खत्म हो जाते हैं और आप बातचीत के जरिए से, क्योंकि आपने उसको समझा कि क्यों ऐसा किया, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपके बेटर और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उससे. एम्प्लॉइज कैन सेंस व्हेन क्रॉस कम्युनिकेशन अकर एंड दे कैन टेक स्टेप्स टू रिस्टोर कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन. समझ आया? किसी से लड़ाई हुई है या कम्युनिकेशन रुकी हुई है आपकी, तो क्या उस चीज को फ्लो मिल सकता है फिर से. ट्रांजेक्शन एनालिसिस स्पेशली यूजफुल इन द सेल्स एंड अदर एरियाज वेयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिलेशनशिप. ट्रांजेक्शन एनालिसिस सेल्स में ज्यादा बेटर है. क्यों सर? आप अगर बुरा मान के बातचीत करना छोड़ दोगे तो सेल खत्म हो जाएगी. लीडरशिप क्या होती है? सर मैं घंटे तक इस पे लेक्चर दे सकता हूँ, मैंने आपको अच्छे से समझाया. वो होता है लीडरशिप क्या होता है. लीडरशिप क्या होता है फिर से कोई बता सकता है? It's the ability of human being to get the things done from others. It involves elements of leadership is influencing skills, communication skills, and one must have ability that others can rely on that. Leader तो best वही होता है जिसको भरोसा कर सकता है. ठीक है. So leadership may be defined as a process by which the manager guides and influence the work of subordinates in the desired direction. Leader is a process by which an executive can direct. Leadership क्या है? Process है. इससे क्या होता है? ओके, कंफर्टेबल हो सारे? गर्मी का माहौल नहीं लग रहा. एनीबॉडी नीड्स एसी? जैसे करना पड़ेगा आपको, जिसको भी चाहिए. You have to come here and start it or open the door. जिसको भी चाहिए इधर से स्विच ऑन कर दो साथ. Okay, next. So leadership is a potential to influence behavior of others. Leadership क्या है? दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का एक पोटेंशियल होता है उसके अंदर, लीडर के अंदर. According to Keith Davis, leadership is the ability to persuade others to seek defined objective. Leadership is the ability to pursue मतलब दूसरों से करवाना क्या, others से करवाना क्या, defined objective. Enthusiastically, it is a human factor which enthusiastic मतलब जोशीला, जोश. It is a human factor which binds other group leaders together to motivate it towards a goal. What are the characteristics of leader? सर बहुत आसान है. लीडर के characteristics कौन से होते हैं? Interpersonal process which manager is into influencing and guiding work towards attainment of the goal. Denotes few qualities to present in a person which include intelligence, maturity and personality. Group process होता है कि leaders involved in shaping and molding behavior of group towards accomplishment of our mission goal. Leadership is a situation model. हाँ जी, हर जगह एक जैसी leadership तो नहीं लग सकती. Situation to situation depend करती. Cultivated leadership attitude. Since leading people involves interpersonal relationship between the leader and the followers, the leader should always try to improve his attitude towards the led to become effective. This process is more important than mere acknowledging the things, because certain behavior pattern of the learned can be used with a skill. Some such behavior patterns are, कुछ behavior patterns होते हैं of learned can be used with skills. Skills के साथ ही use किए जा सकते हैं. सबसे पहला अवेयरनेस. अवेयरनेस जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, एजुकेट करना दूसरों को. जब खुद को नहीं पता तो ये स्किल्स के साथ ही हो सकता है. बिना स्किल्स के अवेयरनेस फैला नहीं सकते. एम्पैथी क्या होता है? दूसरे की फीलिंग से दूसरों को समझना. एम्पैथी. ठीक है. ओके. It is generally described as the ability of the person to look at the things or problem from others' point of view. माने जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किन्हीं चीजों को समझना. जैसे हम कई बार ऐसा होता है ना, हमारे एक करने से दूसरे को तकलीफ हो सकती है, तो वो क्या है? एम्पैथी है. कमिंग इन द शू ऑफ समवन
helps and understanding the things. Objectivity. In his task of leading, the manager should not be guided by the preconceived notion about the attitude and behavior of his subordinates. Problem and their cause should be observed very objectively and unemotionally. And then is self knowledge. सेल्फ नॉलेज के बिना तो आप लीडरशिप की स्किल्स को यूज कर ही नहीं सकते हो. अपने बारे में तो जान लो पहले, अवेयरनेस तो बाद में है. मैनेजर में थिंक हिमसेल्फ टू बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव बट सबऑर्डिनेट्स में व्यू हिम एज अ, सबऑर्डिनेट्स को शायद वो चीज अच्छी ना लगे. He should therefore know for himself how he appear to others. अगर उसमें कुछ बदलाव लाने तो वो बदलाव भी लेके आएगा. दूसरे उसको कैसा देखते हैं वो भी उसको समझना जरूरी है. फॉर इंस्टेंस, इफ सेल्फ रियलाइजेशन leads him to learn that instruction are not properly understood, the manager can attempt to improve his ability to communicate. दूसरों से फीडबैक जरूरी है. What is communication? Communication. Communication is basically when one person gives a message and the receive it and gives a feedback. Feedback देने पर communication खत्म होता है, याद रखना है. Communication is a vital aspect of the managerial process. In fact, superior subordinate relationship cannot thrive without effective and meaningful communication. Effective communication is often defined as the exchange of thoughts, ideas, information between two or more persons, so bring about mutual understanding or confidence. तो communication होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई चीज पे बातचीत करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन में भी थ्रू वर्ड सिंबल. अच्छा, कम्युनिकेशन एक तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, वर्ड से. एक होता है सिंबल, ये भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिंबल से. लेटर्स, एक्शंस, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर गद्दे पे बैठे तो मैं यहाँ से चेयर निकलवा देता हूँ बिना बोले और गद्दे लगवा देता हूँ. तो मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ? आपको चेयर पे आज बैठना नहीं. ये भी कम्युनिकेशन का टाइप है, ठीक है. Action. But long as people in the organization share the meaning of understanding with another, there is a communication. To be more specific, communication may be defined as a transfer of information understanding from one person to another, and communication is completed when the other person gives the feedback of communication. There are two indispensable features of communication. कौन से? Communication cannot take place until there is at least, आप अपने साथ बातचीत नहीं कर सकते. Communication need not any illicit confidence, but the information which is so exchanged must be understood by the receiver. However, understanding does not mean that the receiver must agree to information. Understanding का मतलब ये नहीं कि तुम बिलीव करो, उसको मानो, हाँ करो. बस समझना है आपने और अपना फीडबैक देना है, हाँ या ना. मैं आपको कहता हूँ कि x y is equals to z. कम्युनिकेशन मेरी तरफ से हो गया, ध्यान से सुनना. एक्स वाई इक्वल टू जेड मैंने कम्युनिकेट कर दिया. अब आप कहते हो नो या आप कहते हो यस, ये आपका फीडबैक. कम्युनिकेशन फिनिश हो गया. मेरा कम्युनिकेशन एक्स वाई इक्वल टू जेड, आपका कम्युनिकेशन नो और यस, एंड हम दोनों का, ठीक है. या फिर आप, मैंने तो वर्बल किया, आपने नॉन वर्बल किया, आपने कहा नो या फिर पॉसिबल. ओके, नीचे वाला पढ़ के देखो.
अच्छा, आप कैन वी से दैट द वे वी प्रेजेंट इट शोज आवर लाइफस्टाइल? तो वे वी प्रेजेंट मतलब जिस तरीके की हम बात, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल दिखाता है। एक बार एक स्टूडेंट थी मेरी, 8-9 years back. She came to institute. उसके father, I was watching from CCTV. उसके father ने रिसेप्शन पे पूछा कि ये कल आई थी क्या? रिसेप्शन वाले ने अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दिया। फादर के पास हेलमेट पड़ा था, उसने हेलमेट उसी टाइम उठा के उसके सर पे मारा। हेलमेट उठ गया। एक कम्युनिकेशन था उन दोनों के बीच में, समझ आया? कि फादर ने कहा कि हाँ नहीं नॉर्मल, मुझे पता चल गया कि तूने क्लास को बंक किया और हमसे झूठ बोला। और फादर ने एक और कम्युनिकेशन दे दिया, अगली बार अगर किया, ये तो अभी ट्रेलर है, अगली बार सोच क्या होगा। वो लड़की रोने लग गई, द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग। तो उसकी तरफ से भी कम्युनिकेशन गया, क्या मुझे गिल्टी फील है, मैं रो रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, उसकी पेन तो होगा। हमने उनके फादर को उठा के बाहर भेज दिया, तो हमारा भी कम्युनिकेशन हो कि हमारे यहाँ पर वायलेंस वाली चीज़ अलाउड नहीं है, और अगर अगली बार किया तो आपके साथ भी हो सकता है। प्लस उस लड़की को भी समझाया कि आपके घरेलू मसले घर पे रखो, यहाँ मत लाइए। वो भी कम्युनिकेशन हमने वर्बल दिया, दैट गर्ल सेड ओके, नोडिंग करके। वो हमारी तरफ से उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हुआ, यस ये भी है। एंड एक और क्वालिटी पता चली, वो क्या पता चली? द वे दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर वाज शोइंग देयर लाइफस्टाइल। मैं अपने अकेला तो कर ही नहीं सकता ना कम्युनिकेट, अपने आप से 2 लोग तो चाहिए। पर जैसा उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया, वो क्या दिखाया? उनकी लाइफस्टाइल दिखाया कि किसी कैसी लाइफस्टाइल में है, ठीक है। और जो हमने किया वो हमारी लाइफस्टाइल दिखा दी कि हमें वायलेंस पसंद नहीं है। उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो इंस्टीट्यूट है, घर होता तो पता नहीं क्या होता। आफ्टर सम टाइम, मतलब नॉट रिलेटेड टू दैट, गर्ल स्टॉप्ड कमिंग। तो पता क्या, तो पता चला कि उसके पैर वैर पे लगी हुई है, छत से या खिड़की से कूद गई, जिंदा हैप्पीली मैरिड है, शी जंप फ्रॉम द विंडो। हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द फैमिली कि आप मुझे बंद करके रख नहीं सकते, करो तो खिड़की को बंद करो, नहीं तो ये मैं यहाँ से कूद के चली जाऊंगी। So the way you communicate shows your life, आपकी जिंदगी दिखाता है वो। Okay, the process of passing any information from one person to other person with the aid of some medium is termed as communication. तो sender होता है, information होती है, और receiver होता है। Then in an organization, your boss will never give you your share of credit unless and until चल जाएगा वो, अपनी नजरों से नहीं चलेगा, इधर देखो। In the organization, your boss will never give you the share of credit, वो आपको क्रेडिट कभी नहीं देंगे, unless and until the present of your work is well defined manner। अगर जब तक आप उनको well defined manner में नहीं दिखाओगे चीजें, तो वो आपको क्रेडिट नहीं देगा कभी। क्रेडिट लेना है तो हर चीज को मैनेज करके चलना है। अच्छा, माँ बाप कभी भी समझेंगे जब तक बच्चा रोएगा नहीं। बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसको खाने को नहीं मिलेगा, बच्चा जिद नहीं करेगा तब तक उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी। खुद तो लाके माँ बाप तो नहीं देते कि ले बेटा खा, खराब कर अपना शरीर। वो तो आप जिद करते हो तो मैगी, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये तब मिलती है जब आप, कोई भी आपको माँ बाप देने की जा बेटा जा गोवा जा, बैंकॉक जा, घूम के आ, ये ले पैसे। जब तक आप खुद उस चीज के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करोगे घर पे, तब तक कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे बेटा जाना चाहिए, यू मस्ट गो, मंदिर नहीं, कोई नहीं कहेगा। तो आपको हर चीज कम्युनिकेट करेंगे, और जब तक माँ बाप आपके 2-4 रैपट या थप्पड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में मारेंगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स
लेके नहीं आओगे, मतलब रिजल्ट खराब आने के बाद। कुछ तो पहली बार में ले आते हैं, और दूसरा जब फेल होने के बाद जब तक आपको टॉन्ट ना मारे जाए, खिंचाई ना की जाए, मारा पीटा ना आ जाए आपको, तब तक आप दूसरी बार के लिए हार्डवर्क नहीं करते। आपको लगता है ये तो एक्सेप्टेबल है, इट्स ओके, दे हैव कम्युनिकेटेड टू अस कि इट्स ओके। अगर उन्होंने कम्युनिकेट करा आपको मारपीट के, सुना के, डांट के, तो आपको लगा नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, आपने क्वेश्चन देखने एट द एंड ऑफ द क्लास, उससे बाद में उसका नया टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? थोड़ा इजी टॉपिक है तो हम आज खत्म ही कर देते हैं, 15-20 मिनट फालतू लेके, फालतू शायद ना ही लगे बट जो भी लगेगा खत्म कर देते हैं, तो दैट मीन्स आज आपका खत्म भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोई बता सकता है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सिंपल, हाँ सिंपल चीज। दो लोगों में तालमेल। तालमेल को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, सही है बिल्कुल। दैट इज दो लोगों के बीच में मीडियम, बात करना, बात नहीं भी करना, हर एक चीज को कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। तालमेल इज द बेस्ट वर्ड, इसको कोऑर्डिनेशन बोला जाएगा। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट एंड वर्क ग्रुप्स, एंड नो सिंगल डिपार्टमेंट और वर्क ग्रुप और इट्स ओन एक्सपेक्टेड टू अचीव द गोल। किसी एक को नहीं बोला जाता जब तक दो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेल परचेज में नहीं है, प्रोडक्शन सेल में नहीं है, फाइनेंस और परचेज डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वेस्टेज ही होगी सब चीजें। और अगर सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड है ऑब्वियसली फिर तो बेस्ट अचीव होगा रिजल्ट आपका। Hence, it becomes essential that activities of the different departments and work group organizations are organized. This function of management is known as coordination function. It ensures unity of actions among the individuals, work groups and departments, and bring the harmony in carrying out the different activities and tasks as to achieve the organization goals efficiently. The concept of coordination always applies to the group efforts. There is no need for coordination when only single individual is working. अकेले के तो coordination की जरूरत है ही। Next to next para. In other words, next para. Coordination function is the orderly management of the individual and the group efforts to provide unity of action and pursue the common goal. Coordination होता क्यों है सर? Organize तरीके से काम हो जिससे कि common goal achieve हो। Significance, मतलब importance of coordination as to function of management mainly arise from the fact that work performed by the different departments and groups from an integral part of the total work for which organization exists. Without harmonizing efforts or unity action, achievement of goal in some department may run counter to that of other department. मतलब coordination नहीं होगा तो repeat भी होगा task, समय ज्यादा लगेगा, wastage of resources होगी। coordination से फायदे क्या होंगे? गोल अचीव होगा, रिपीटेशन खत्म हो जाएगी, हार्मोनाइज हो जाएगा आपका एफर्ट्स सारा का सारा। कोऑर्डिनेशन को कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बताया? कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इस तरीके से ग्रुप के एफर्ट्स को अरेंज करना टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल्स। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स into orderly whole to achieve the purpose of understanding the coordination. ठीक है, फिर आ जाओ फीचर्स। What are the features of coordination? Coordinations के फीचर्स क्या क्या है? पहला, coordination is the unification, integration, synchronization of efforts, मतलब simply harmonization, सब साथ में मिलके करना। Group members so to provide unity of action in pursuit of common goals. It is hidden force which binds all other functions of, according to Moonley and Riley. Coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action. मतलब सारे के सारे efforts को एक साथ harmonize करना जिससे कि achieve क्या हो जाए? Unity of action. Unity of action मतलब एकता है, action एक साथ हो सकता है। Next is management seeks to achieve coordination through specific function like planning, organizing, staffing, management. इन सब से क्या रहता है? वो basically coordinate ही करना चाहिए। The significance of coordinating function becomes more important when the size and scale of corporation is done. पर एक दो आदमी को तो क्या coordination करोगे? तो बहुत सारे लोग होते हैं तो coordination करना थोड़ा मुश्किल होता है और वहीं पर इसकी importance पता चलती है।
जैसे आप ट्रिप पे जाते हो, घूमने जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, स्कूल ट्रिप्स एक्सेट्रा में, आपके कॉलेज ट्रिप्स या इंस्टीट्यूट ट्रिप्स जो होते हैं, उसमें क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। जैसे हम बोलते नहीं कि आपस में कोऑर्डिनेट करके बता देना हमें आप कब आना चाहते हो। So when the size and scale of operation is large, there is more number of people and work group working is, so the greater possibility of people working at a cross purpose as the unit है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के ज्यादा थोड़े से चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जनरली टेंड्स टू हैव एक्टिविटीज लोकेटेड एट अ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर होती है उनकी एक्टिविटीज, which may not permit frequent and close interaction among the people. Hence the need for coordination becomes greater and it becomes a major responsibility for the large size of organization is often associated with the diversification of business activities. This may be due to large number of different types of product being produced. Due to it, there are several division and subdivision of activities, and at the same time there are also increase in number of managerial levels and vertical divisions. All these may coordinate function and an important function of management. कोऑर्डिनेशन का फायदा क्या है? तो कोऑर्डिनेट वही मैनेजमेंट के फायदे, सबसे पहला तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कम कर देता है, पैसा कम कर देता है, और अचीवमेंट ऑफ गोल, ये सब तो एक सेम हो ही जाते हैं। वही सेम तो चार तो वही ले आओ, याद है स्टार्टिंग वाली? Important function of management, group goals, utilization of resources, proper utilization of resources, or continuous process, efficient site organization, goodwill, वर्षा सब कुछ आ गया। अच्छा, तो इसमें और आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में। सबसे पहला अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, पहला तो गोल अचीव हो रहा है। दूसरा फैसिलिटेट द मोटिवेशन, जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन है तो मोटिवेशन तो रहेगा। क्यों सर? कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा? तो सोचो, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं, सर मेरे में और आप में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन है सर, ऑफ कोर्स प्लेजेंट बिहेवियर रहता है सबका, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम आप समझते हो, आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूं, तो कोऑर्डिनेशन ही हुआ, यही तो है कोऑर्डिनेशन। और क्या कोऑर्डिनेशन? फैसिलिटेट मोटिवेशन, यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब क्या हुआ? सारे एक एक्शन की तरफ, नहीं तो एक कुछ और ही सोच के बैठा है, दूसरा कुछ और ही बैठा है, ऐसा नहीं चलता। देन एनकरेज टीम स्पिरिट, एनकरेज टीम स्पिरिट, हायर एफिशिएंसी, ऑब्वियसली जो आपने बताया कि रिसोर्सेज जो है आपके इकोनॉमिकली है, एफिशिएंटली यूज होते हैं। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन आपके आपस में लोगों के, इंटरपर्सनल मतलब आपस में लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं। इंप्रूव्स द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, क्या मतलब? वो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनेगी, ब्रांड बनेगा, इमेज बनेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस ओवरऑल बढ़ जाएगी। इंप्रूव्स गुडविल ऑफ द organization. बट इसके कुछ घाटे हैं। घाटे में तो दो तो पक्के हैं, पहला समय और दूसरा पैसा। और सर सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लैक ऑफ टैलेंट, मतलब एक समझदार आदमी चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए, और समझदारों की तो दुनिया में बड़ी कमी है। ठीक है, लैक ऑफ, सारे तो यहाँ बैठे हैं, दुनिया में तो कमी नहीं है, जल्दी से पास होकर आपको जाना पड़ेगा ना उसके लिए। ओके, एनीवेज, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए आपको, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम में बिजी है, तो एक एक्सपर्ट आदमी कोऑर्डिनेशन के लिए अलग से नहीं रखा। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इतने ज्यादा लोग काम करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो पॉसिबल हो जाती है। अगर हम इतने समय से साथ में, तो आप में और मुझ में भी हो जाती है कई बार। ठीक है, आप में और आपके माँ बाप में भी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रदर सिस्टर में हो जाती है, रिलेटिव्स फ्रेंड्स में हो जाती है। ये तो सर एक पैसे के लिए मोटिव आपका क्या है? प्रॉफिट मोटिव, वहां आप काम करोगे तो सर मिसअंडरस्टैंडिंग होना वाजिब। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने वाले भी होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि वो एक डायलॉग बचपन में सुनता था, क्या था वो, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। ठीक है, तो जब दो जने लड़ रहे होते हैं, तीसरे को इंटरेस्ट आता है ना, सड़क पे लड़ाई हो रही होती तो दिल खुश हो जाता था। जितनी भयंकर लड़ाई,
उतना भयंकर खुशी। और रोड पे खड़े हुए कुछ लोग तो आराम से मतलब गाड़ी वाड़ी रोक के और रेलिंग पे खड़े होके, कईयों को ऐसा मिलता है पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मिल जाए, टेबल लगा के बैठते हैं ऐसे देखते रहे बड़े मजे से। और कुछ लोग छुड़वा रहे होते हैं ना, उनको बीच में रहते, तू छटना, तू क्यों कर रहा है, अगलों का मसला है, निपटने दे उनको, तू बीच में क्यों आ रहा है। उनका मोटिव वो नहीं होता है, उनका मोटिव होता है बढ़ने देना थोड़ा, अभी तो मैं आके खड़ा हुआ। तो वो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए कुछ लोग अपने फायदे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, वो वही कहते हैं ना, फर्स्ट 5 years पेरेंट्स दिखते हैं बच्चे में। वही वाली बात है कि आपके माँ बाप ने शायद आपको वो चीजें सिखाई नहीं कि 2 + 2 5 होता है, ठीक है। उनको शायद वो चीज 2 + 2 5 6 7 भी आता है। तो हम उतने इनोसेंट है और वो उतने चालू है, और वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और उस हावीनेस में हम अपना घाटा कर लेते हैं। और वो तो अपना बराबर चल रहा है सर हमारा, और आपका घाटा मतलब मेरा फायदा, क्योंकि मैं जब तक आपको नहीं मारूंगा तब तक मैं एक कदम आगे। दिस इज द कॉर्पोरेट लाइफ। और हम गलती क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों में अपने रिश्ते ढूंढने लग जाते हैं, मतलब वेल विशर्स। दोस्त बनते थे, बन गए, अब आप प्रोफेशनल कोर्स में हो या दोस्तियां नहीं होती है। आई माई सेल्फ अ प्रोफेशनल। तो यहाँ प्रोफेशनल में दोस्त नहीं बनाए जाते, प्रोफेशन में क्लाइंट्स बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल में आप फेल हो गए तो कल को आप तो क्लाइंट हो मेरे, समझ आया। अब ये 2 जने अगर सीए या सीएस करते हैं, एक फेल हो गया, अगर कल को कुछ ना तो काम धंधा करेगा, नहीं करेगा। और मेरी जान पहचान उससे है, और उसको मुझसे ज्यादा ट्रस्ट किसी पे नहीं। मैंने तो सर उसकी जिंदगी तबाह कर दी, तो ट्रस्ट तो होगा इसको। तो ये सर्विसेज किसकी लेगा, मेरी लेगा। तो प्रोफेशन में दोस्त नहीं, क्या बनता, क्लाइंट बनता। और आपको गिराने के मुझे बड़े फायदे हैं। एक तो फ्यूचर में मेरा काम बढ़ा, आज का मेरा कंपटीशन खत्म हुआ, और जो आत्म शांति जो हुई है उसका तो अनुभव सर मैं बता ही नहीं सकता। तो हमेशा एक चीज लाइफ लेसन, जब तक आप प्रोफेशनल पढ़ाई करते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान। मैं ये नहीं कह रहा दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ, पर दोस्तों को अपने करियर पे हावी नहीं होने दें। मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत लगता हूँ कोई को, दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ, पर दोस्त करियर पे हावी नहीं होते। वो दोस्त तो वर्ड नहीं होता है, नोन होता है। When you enter the NMC, आप किसी को नहीं जानते थे आपको, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप इतने दिनों में किसी को जान नहीं सकते, या कहीं भी आप जाते हो 1-2 साल जानने के लिए बड़े कम है। तो आप अपने माँ बाप को बोल दो मैं नहीं समझ सकता इनको, तो जब पैदा किया उसको आप 20 साल में नहीं समझ पाए, तो आप 2 दिन में किसी को कैसे समझ जाओगे। तो अपने को पढ़ने पे ध्यान दो। दोस्त बनाना रिजल्ट के बाद पता चलता है, तो दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आए, समझ आए क्यों, पूछने के लिए। आप नहीं जाते सीनियर के पास टिप्स दे दे, तो आपको फिर पीछे भागने की जरूरत नहीं, लोग आएंगे। और वो जो फीलिंग होती है ना, तो स्पीचलेस होती है व्हेन पीपल कम्स टू टॉक टू यू एंड यू डोंट हैव टाइम। तो आपसे समय लेते हैं, वो एक अलग चीज, रन टुवर्ड्स दैट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, पहला इंटरनल कोऑर्डिनेशन, एक होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन, एक होता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। तो एक दिन मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के टाइप बताई थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। तो मुझे बता सकते हो हॉरिजॉन्टल कौन सा था? जो कि हमारे साथ में हमारे कैसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा। और वर्टिकल, हाँ याद रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल मतलब अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो, प्रोडक्शन का हेड, परचेज का हेड, सेल्स का हेड, सारे हो गए। और वर्टिकल टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? 2 टाइप का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? वर्टिकल एक टीम में भी हो सकता है, सेल्स हेड विद द सेल्स सबऑर्डिनेट्स और एग्जीक्यूटिव्स और लोअर लेवल, है ना। और सेल्स हेड विद द टॉप लेवल, ये भी तो हो सकता है ना, 2 हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ आ गया, एक ही टाइप का और सेम लेवल के लोगों से अपना कोऑर्डिनेशन।
पे लिख लो जल्दी से। अच्छा, अपने कलीग से आपने कोऑर्डिनेशन करना है, कौन सा होगा? और सेम लेवल हो गया हॉरिजॉन्टल। और दूसरे डिपार्टमेंट के कलीग से करना है, वैसे वो डायगोनल होता है। डायगोनल ये भी होता है कि उस फाइनेंस का हेड सेल्स के सबऑर्डिनेट से बात करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो वो कौन सा होता है? वो डायगोनल हो। आया ना समझ? डायगोनल वो लेटरल कब लिखता है? मतलब आपस में जब उसको वर्ड के साथ एसोसिएट रहेगी, लेटर वाला, लेटर या इस टाइप का उस वर्ड के साथ लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ। हम वर्ड लिखा के साथ कुछ ना कुछ लिखा होगा, जैसे बोलते हैं कि लेटर समथिंग वाला वो निकालना। जल्दी से पहले ये पढ़ लो हॉरिजॉन्टल, इसका पढ़ लिया। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट के साथ, एडवर्टीजमेंट वाला, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा के साथ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सर बाहर वालों के साथ, सिंपल है। अच्छा, बाहर वाले अंदर वाले तो पता ही अपने को माइक्रो वाला फैक्टर करा था अभी रिसेंटली, आपने करा था लास्ट चैप्टर में करा। एचआर कोऑर्डिनेशन, दिस इज द एसेंस ऑफ, बिल्कुल है। कैसे? Since the coordination function is the management is a very important, it is sometimes called as the essence of management. Coordination is the integral element and integration of all the managerial functions. It is a hidden force which binds all the other functions of management. It is required in each and every function and at every stage. Coordination function cannot be separated from other functions as described below. Coordination planning से हट सकता है ना? प्लानिंग में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुपिंग, ग्रुप में तो सबसे पहले चाहिए। मैंने फिर एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं। कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्शन, डायरेक्टिंग चैप्टर इज ऑल अबाउट एक दूसरे को बताना, कम्युनिकेट करना। एंड कंट्रोलिंग जो हम कर चुके हैं चैप्टर, उसमें क्या होता है वो भी ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन है वो पढ़ो, लेसन राउंड अप पढ़ो। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।